So we have artist Sharad Tardeji and Shuchita Tardeji. They are abstract expressionists, and they are quite a veteran in this form of art for many years. And we feel that abstract expression is little bit of a gray area for many of us. We look at an abstract painting. It happens that unconsciously some paintings look right, some paintings look little off, but we don't know why. The very purpose of this discussion we initiated is to throw some light on why abstract expression, where it came from, and why at all we appreciate or we do it. Why not paint images of objects that we are familiar with? Why it deviates so much from the known territory and falls into something we are not familiar with, a gray area. So this is what they will be talking about. इसके बारे में ना बात करें तो प्लीज़। तो मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि किसने अभी तक एब्स्ट्रैक्ट किया है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, कोई बोल सकता है क्या? व्हाट इज योर नेम? Abstract, what is then abstract? Can you imagine or can you speak about that whole thing? What is then abstract? Yeah. अपनी experience हाँ, अपने you can your own language. For me, it is an abstract is something which is not seen, which is not a figure thing, which is not one thing everyone will agree on. That I draw a picture of a tree, everyone will say it is a tree. There is no one who will say no, it's something different. In abstract, what I find fascinating is that it's open to interpretation. And it does not depend on what the artist is feeling while he's making the abstract. It depends on the viewer, on his mental or emotional framework that time. Own views. Yes. Yeah. And what I have seen is you interpret abstracts according to where you are in your own, what you are thinking. And so we could see the same thing and interpret differently according to us, the viewers. That's what, for me, the abstract is really. Great. Any other? Any? I think something that can spark a discussion, something that lets the imagination run wild, and that gives you ideas, and something that cannot be conceived because it is something, but because your mind came up with it. Okay. What's about you? In my opinion, abstraction is you. Okay. What you think, you just want to play with colors, you can play. There is no boundaries, nothing. It's just only creativity. So abstraction is, according to me, is just pure creativity. And it's, as she said, it's about interpretation. Anybody can see anything, and it's how the pictures appeal, and it's something out of the box thinking. You can see, imagine. So that is the beauty of abstract. Okay. Great. I think abstract primarily is non-referential, and it does not involve any form. So definitely it doesn't have a particular language. It is something that is beyond a language, and it doesn't have a reference. Okay. So that's my understanding as of now. Anyone else? I'm still a student and an explorer. That's why you can explore the things. I wouldn't know where to begin. It's an enigma to me. Okay. I do it to learn more about it, about myself, or to get lost in it. I think that maybe sometimes it's not real. Like for me, abstraction, if it's asking me, is it real or is it not? There's something tangible, there's something intangible, and there's something subconscious. It's not in the physical world, it's in the subconscious realm. So
That's what abstract is to me as of now. It could change in the future. Okay, that's great. Means each and every person have a very different view about abstract. Abstract is one, but view is very different. That's great. That is the basic thing of abstract. कि जो भी आप देखें ना वो आपके व्यू से देखें, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे व्यू से करूँगा। और सेकंड थिंग है ऐसे कि एब्स्ट्रैक्ट में आप जो बोल रहे हैं ना कि इनर स्पेस का कोई है, फीलिंग्स है, तो उसके बियॉन्ड भी है कुछ। देयर इज़ अ नो सब्जेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये ध्यान में रखो। कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर? अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप ड्राइंग कैसे करेंगे? तो फीलिंग के बारे में है खाली कि हर एक दिन में आपको समझे 24 आवर्स का डे है, तो हर एक 1 आवर में हर एक मिनट में आपका मूड अलग अलग हो जाता है। कोई भी मन में कोई आता है, कभी माँ की याद आती है, कोई तो नेचर देखते हैं, कोई किसी से बात करते हैं, कोई स्ट्रगल हो जाता है, कोई फ़ोन पे आपको गाली देता है, तो आपका मूड अलग अलग चेंज होता है। तो एक ही पिक्चर आपको अलग अलग दिखेगा वो मूड से। तो ये रियलिस्टिक में होता नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक एक्चुअली द मोर एब्स्ट्रैक्ट। मैं कैसे समझाता हूँ? अगर मैं अभी जो भी वर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर मार्क्स वर्ड किया, तो मैं जो माँ के बारे में बोलूँगा वो आप जब सुनेंगे तो वो आपके माँ के बारे में सुनेंगे, समझे? मैं कितना भी 1 घंटा बोलूँ मेरे माँ के बारे में, लेकिन आप सोचेंगे वो अपने माँ के बारे में। दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंग कि आप एक उसका लाइन लेके, नहीं तो जो भी थ्रेड है वो लेके आप आपके मन के हिसाब से आप आगे जाते हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन ही है। जो भी हम पोएम सुनते हैं तो आपके आँख में पानी आ जाता है कभी कभी, तो वो लिखने के वाला का पानी आने के लिए नहीं लिख रहा, लेकिन वो फीलिंग है वो आप समझ लेते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, दिस इज़ हैप्पीनेस। तो जो भी अपने इंडिया में जो 9 रस बोलते हैं उसको, जो वो फॉरेन यूरोपियन इसमें नहीं है वो, तो ये जो इम्पोर्टेंट है 9 रस में, वो अलग अलग फीलिंग है अपनी। तो अगर सब्जेक्ट अगर नहीं है एब्स्ट्रैक्ट को, तो आप कैसे करेंगे एब्स्ट्रैक्ट? अभी हमारा जो कहना है ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट में जो बीती हुई बातें हैं, हिस्ट्री है आपके मन की, जो आप सोच रहे हैं, अपनी मेमोरीज है, उसको भी अंदर लेना नहीं है। यानी यू हैव टू क्लीन योर माइंड। जब भी आप काम करेंगे तो अभी का जो है स्टेटस, यानी जो भी टुडेज माइंड, वो आपको इधर आना है। और सेकंड थिंग इज वट एवर बी द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग, यू हैव टू एंजॉय, नॉट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पेंटिंग। ये ध्यान में रखो। कोई भी कला में फाइनल प्रोडक्ट अगर आपके ध्यान में आ गया पहले, तो आपका काम अच्छा नहीं हो जाएगा। आप क्या करेंगे? दूसरे के लिए काम करेंगे, फिर आपके एन्जॉयमेंट के लिए नहीं, वो प्रोसेस में एन्जॉयमेंट नहीं लेंगे। तो एन्जॉयमेंट ऑफ जो आर्ट है वो उसमें कि प्रोसेस में है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें 100% आपका माइंड चाहिए, वो इधर इधर नहीं चाहिए। और काम आप जब रियलिस्टिक काम करते हैं तो आप मेमोरी ड्राइंग करते हैं एक्चुअली, कि जो भी मंदिर देखा, बिल्डिंग देखा, आदमी देखा, ये देखा, तो वो जो है वो इसमें नहीं है। दिस इज अ सिम्बॉलिक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, सिंबल ऑफ कलर्स, कि जो भी रेड कलर्स का फीलिंग है वो मुझे अलग है, आपके अलग है, इसके ऑरेंज कलर का इनको अलग है, मुझे अलग है, वाइट कलर का इनको अलग है, इनको अलग है। तो वाइट कलर के कुछ पैरामीटर अपने मन में है, कुछ पहले ऑरेंज कलर के पैरामीटर है, ब्लैक कलर के पैरामीटर है, तो इसके हिसाब से आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखते हैं। कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है वो हिसाब से करता नहीं है, ये ध्यान में रखो। इसलिए जो भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है उसको कभी भी पूछो मत कि आपने क्या किया। ओके, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू एंजॉय इट द थिंग्स। बस
आपको अगर अच्छा लगा बुरा लगा दैट इज योर पर्सनल लैंग्वेज, लेकिन कोई भी अच्छा बुरा हो नहीं सकता। वो आपके लिए रहेगा तो इनको अच्छा लगेगा, इनको बुरा लगेगा तो इनको अच्छा लगेगा, ये ध्यान में रखो। अगर सबको अच्छा लगना चाहिए, अभी तक वैसा पेंटिंग बना नहीं है कोई भी, कभी भी नहीं बना। सही बोला। और वो इम्पॉसिबल है। अभी इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग है, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक के जीन्स अलग है। तो वो जीन्स आपको जो भी है पॉजिटिव थिंग्स नेगेटिव थिंग्स वो डाल देते हैं। वो आपका लाइफ सेंटेंस रहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये टेस्ट अच्छा लगता है, वो अलग रहता है। तो ये जो टेस्ट है ना, उसके ऊपर आप जजमेंट करो कि वो पेंटिंग आपको अच्छा लगता है कि नहीं, बस क्रिटिसाइज मत करो उसको। इस मूड में हम देखते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट बहुत होता है। मतलब आपको बहुत गुस्सा आया होगा और आप किसी एग्जीबिशन में गए तो कौन सी भी पेंटिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी वो वो मूड के, अपने मूड के ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। कि जैसे कि आज आपका मूड अच्छा है, रास्ते में कोई भिखारी आया तो हम 10 रुपये दे देते, 4 दिन के बाद वही आया तो आपका मूड ठीक नहीं है तो बोला अरे क्या है कल ही दिया था ना तो वो सब है ना, वो अपने मूड के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, इवन लाइटिंग के ऊपर। तो जैसे हम उसको देखते जाएंगे ना तो उसमें जो फ्लेवर है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये कलर्स कैसे यूज़ किए हैं, ये कॉम्पोजिशंस कैसे हैं उसके, मतलब जो बने हैं। तो वो आप देखो कि टेक्सचर का कैसा यूज़ किया है, स्पेस का कैसा यूज़ किया है उसमें, तो वो इम्पॉर्टेंट है। लोग देखते हैं ना तो कुछ वो एब्स्ट्रैक्ट में फॉर्म में कुछ तो एक छोटा सा कभी कभी बर्ड जैसा दिखता है तो वो लोग अरे कितना अच्छा बर्ड निकाला है, तो आर्टिस्ट तो वो बर्ड के लिए नहीं निकाल रहा है ना, पेंटिंग कर रहा है। तो वो ओवरऑल पेंटिंग का जो मज़ा है ना वो लेना चाहिए, और वो फीलिंग्स क्या बोल रही है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। और जो फीलिंग्स है ना वो हर एक का अलग है, इसलिए हर एक को अलग अलग पेंटिंग अलग अलग टाइप पे अलग अलग अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी आप ऐसा मत सोचो कि ये बुरा है इसलिए कल आपको बुरा लगेगा, कल वो आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए हम भी जब एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तब तक हमें लगता है कि ये पेंटिंग बराबर नहीं हो गया, तो 4 दिन के बाद जब देखते तो उसमें से मालूम हो जाता है कि ये का पार्ट अच्छा है, वो पार्ट अच्छा है, फिर वो अलग अलग हम ट्राई करते हैं। तो लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम एब्स्ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट इट इज़ ए एक्सीडेंटल पेंटिंग है, ये ध्यान में रखो। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि समझो मैंने 10 बरस अभी एब्स्ट्रैक्ट किया, तो 10 पेंटिंग मेरे 10 बरस में ऐसे है कि जो भी मुझे अच्छे लगते हैं और हो गए मेरे से अच्छे, लेकिन उसके लिए मुझे 100 पेंटिंग करना पड़ा। और जब 100 पेंटिंग किया तो उसमें से मुझे ऐसा लगा कि अभी 100 पेंटिंग में एक ही टाइप करके करके मुझे कुछ आता नहीं है। जब तक ये आता नहीं आप बोल रहे हैं ना, तब आप परेशान हो जाते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है, इवन दो आई एम आर्टिस्ट। तो वो जो पॉइंट है, वो जो दिन है, वो जो ये नहीं, वो मिनट रहेगा आपके मन में कि मुझे आता नहीं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगलिंग पॉइंट। उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट आने का चांसेस 50% है। इसलिए हम कैसे करते हैं कि हम जब एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि समझते हैं कि समझो अभी ड्राइंग करें, तो कुछ भी मुझे मन में आता है ड्राइंग, तो मैं पेंसिल ड्राइंग करके जो भी मैं देखता हूँ बाद में कि ये कल जैसा बना है तो मैं राइट हैंड में रखता हूँ। और कुछ भी मुझे समझ में जब भी ना आता नहीं कि वो ये अलग ही कुछ बनेगा तो वो लेफ़्ट साइड रखता हूँ। ऐसा अगर मैंने 50 नंबर ऑफ़ ड्राइंग्स किए तो उसमें से 10 मुझे अच्छे नहीं लगे, तो जो राइट में है ना उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो फेंक दो, जला दो, कुछ भी करो, क्योंकि वो आपके मेमोरी के हिसाब से बना है। दैट इज़ योर, जो भी अपने लाइफ किया ना वो बनाया है, तो इट इज़ नॉट ए इम्पोर्टेंट टू एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी लेफ़्ट साइड में जो है ना, दैट इज़ ए न्यू थिंग फॉर यू, क्योंकि आपको उसमें से मालूम नहीं है क्या निकलेगा, लेकिन जो निकलेगा वो पहले बार आप महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस पहले बार करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट इज़ एवरी एक्सपीरियंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो आप देखो कि उसमें से कैसे कंपोजिशन करके क्या होता है, क्या नहीं होता, लाइन कैसे बड़ी है,
लाइन ऊपर नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, कोई 3-4 कोलाजेस किया तो कैसे लग रहा है, कौन से कलर हमने यूज़ किए, क्या कर रहे हैं। तो ये जो अपने साथ बात है ना, वो बात अपनी होनी चाहिए पेंटिंग के साथ। हम क्या करते हैं, हम पेंटिंग कैसा बनेगा इसका खाली सोचते हैं, लेकिन पेंटिंग के साथ बात नहीं करते। तो सेल्फ टॉक रहना चाहिए पेंटिंग के साथ कि मैंने जो बनाया दिस इज़ अ न्यू फॉर मी, और अगर ओल्ड है तो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ क्या फिर स्किल वर्कर हूँ। जो भी हर बार एक टाइप के काम करते हैं वो स्किल वर्कर है, दे आर नॉट आर्टिस्ट। ये ध्यान में रखो। आर्टिस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि डेकोरेटिव कुछ बनाया है, कुछ करना है। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, उसके बाद भी अगर आपको आता नहीं है तो आप प्रोडक्शन मशीन हो गए आप। ये ध्यान में रखो। हाँ, तो क्राफ्टमैन आपको बनना है क्या आर्टिस्ट बनना है, वो आप पहले सोचो। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो खाली पेंटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। में से बहुत सारे लोग करते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, तो वो टाइम आपके माइंड में क्या आता है, मतलब कैसे आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं उसको? what I personally do is अभी मेरे को इनफैक्ट कल से नई 2 पेंटिंग्स शुरू करनी है बड़ी। सो what I do is I just first connect with light। हम लाइट को मानती हूँ मैं, तो connect with the universal light and then I don't, जो first marks होते हैं कुछ भी होता है तो I do with mark making, जो मेरा मन कर रहा है, जो मन में गुस्सा भी किसी के लिए आया है, so I just do that and now I have seen it doesn't work। कि तुम बहुत बार मैंने देखा है कि पहले मैं कहती थी कि 2 साल पहले मैं कहती थी कि नहीं मैं कलर पैलेट डिसाइड करके ना अब इसी कलर पैलेट में बना। नाउ आई हैव सीन कि अब जो मेरी फाइनल कई पेंटिंग्स हैं उस पर 15-20 लेयर्स हैं। वो जो पहले की कलर पैलेट कहाँ गई कुछ पता नहीं, पेंटिंग हैज़ टेकन इट्स ओन कोर्स। सो अब आई डोंट डिसाइड दैट। वो एक मतलब एक जो प्राइमरी टाइप होता है वो एक ब्लू एक ग्रीन वो येलो और एक रेड, वो मैं करती हूँ। उसके बाद आई डोंट गेट टू अटैच टू इवन कि मेरे को इस तरह का बनाना है। तो फिर जो आपने कहा ना कि जो आप हर दिन आके आपकी वो आई हैव एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली। आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई वाज मेकिंग दिस बिग पेंटिंग 3x4 फीट की। तो फॉर मी इट वॉज़ वेरी बिग, इट्स द फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग सच अ पेंट। तो वो कुछ महीने मैंने रख दी एंड आई थॉट कि बस इसको थोड़ा सा और चाहिए। आते जाते मैंने उसको देखा, कुछ पोर्शन अच्छे भी लगे, बट देन आई इट वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर मी। सो आई सेड, फिर मैंने 8-9 महीने के बाद, अभी 2-3 महीने पहले मैंने उसको फिर निकाला। Then now I was afraid of touching it because there were very good portions there. I was getting attached to it कि वो ख़राब नहीं करने हैं। फिर then I thought कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कौन पूछ रहा है मुझे, whom am I answerable to? It's not a commissioned piece. Nobody is breathing down my neck कि बना क्यों नहीं बना और ये ऐसा क्यों बना। I said नहीं, ये डर निकालना है पहले तो। Then जो अच्छे पोर्शन थे मैंने पहले तो उनको किया एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मैं उसको वार्निश करने वाली हूँ वो पेंटिंग। इट लुक्स नथिंग लाइक इट डिड 8-9 months बैक। जो पड़ी रही वो 8-9 months वो एक दीवार पे थी एंड आई वॉज लाइक बस थोड़ा सा फिनिशिंग करना है इसको। उसका कलर पैलेट चेंज हो गया, उसका थीम सब कुछ चेंज होके वो कुछ और ही बन गई है अब वो। मतलब वो प्रोसेस का आपने बहुत एंजॉय किया। हाँ, वो प्रोसेस लव्ड इट। वो पहले दिन किया ना मैंने इतने महीनों बाद, बहुत डर था कि ये इतने अच्छे पोर्शन में कैसे ख़राब कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये इसका कुछ होगा नहीं और निगल मुझे कर रही है, सो दैट मीन्स इट्स नॉट परफेक्ट। सो आई सेड पहले तो इनको ख़त्म करना है, तो बस वो राम का नाम लेके। वो भी एक डेयरिंग चाहिए कि अपना काम वॉश आउट करने के पहले लिए। मैंने वो ख़राब किया जो अच्छा लग रहा था, तब मैं कर पाई जो दूसरे नहीं हो। बिकॉज आई थॉट आई कुड सी कि अगर मैं इनको बचाने में लगी रही मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और बिकॉज आई एम गेटिंग लिमिटेड बाय कि ये
And yeah, coming back to the original thing, what you were saying about memories and I'm not the same person. I was not the same person I was 8-9 months back when I sort of finished that. Not the next So I second you could are not the go same back person. in that. So I could not. I tried to, like I was trying to save the good bits. I could not. I was a different person now. And I had to embrace that. नहीं तो कुछ नहीं होता. Actually, the abstraction is the construction and demolition. Yes, yes, Think yes. of it. When you are constructing the things, आपको उसी टाइम में ध्यान आना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको डिमोलिश करो. और डिमोलिश करो, ऐसा करो कि वो समझ में भी नहीं आना चाहिए कि अपने में समथिंग इज़ न्यू इज़ देयर. और उसके बाद में उसके बारे में आप सोचो मत. वो उसके बाजू में रख दो 1 महीने के लिए. वो ऑटोमेटिकली हो जाए. That is, one of the best advices or I have gleaned lessons I have gleaned कि आपको लगेगा पूरे दिन आपने 15 man hours लगा दिए, आपको लगेगा ये कीचड़ बन गया है कुछ समय. कीप इट असाइड. डोंट बी इन अ रश कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको ख़राब कर. उसको रखो एक, क्योंकि कुछ दिन रखोगे यू विल फाइंड थिंग्स विच आर गुड देयर एंड यू मे फाइंड ओ इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड. Even though you can do that when the upside is there, when downside is there, just round the things. ये अगर पेंटिंग बना है तो ये Yes. उसके पीछे करो, नीचे करो. That is I feel with abstract. this big painting, that's also Yeah. what I did. उसको उल्टा किया तो मैंने. उसको कहाँ Because बैलेंस वो रहे सारा ना? वो my abstract journey, I am somehow I have this mind block कि मैं लैंडस्केप ना बनाऊँ सिर्फ कि वो ये स्काई है, ये है, उसका एब्स्ट्रैक्शन करना सबसे इजी होता है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. तो और वो बनता वही है, बीच में तुम एक जगह एक पर्सपेक्टिव से काम करो तो वही तुम करना शुरू कर देते हो. ये तुम्हारा स्काई हो गया, ये बिल्डिंग्स हो गई, ये तुम्हारे लैंड हो गया. और इस पेंटिंग को बिकॉज आई सेड क्या करूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने उल्टा कर दिया उसको. आई सेड अब नाउ आई एम नॉट अटैच टू कि ये मेरी होराइजन लाइन है, ये कुछ है, कुछ नहीं है उसमें. Everything is change. नाउ Everything is change. डिमोलिश एवरीथिंग. When you say this, a little bit I'll add. Thing is, if you know, the starting point of abstraction in history of art was Kandinsky. Of course, there was somebody before that. उनके पहले भी कोई थे, मैं नाम भूल गया. Anyway, he could not be that artist did not make a name in history, but she did fairly good abstract expression. Anyway, forget the name. But Kandinsky का कैसे आया था? ऐसे आया था. He painted something which was figurative or for familiar objects, and one evening he came back home and in the muted light उन्होंने वो पेंटिंग उल्टा करके रखा हुआ था. तब उन्होंने देखा और उनको लगा कि व्हाट इज़ दिस, इट्स अनदर पीस ऑफ आर्ट, लेकिन और काफ़ी अच्छा है. तो इट इज़ दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली. जस्ट द ओरिएंटेशन चेंज और वो अनफैमिलियर टेराइन में चले गए लेकिन काफ़ी फैमिलियर लगे. और दूसरी बात क्या है कि क्रिएटिविटी किसी को सिखाई नहीं जाती देख सामने का, वो आपके आप डेवलप हो जाती है. तो डेवलप कैसा करना वो भी एक स्टेजेस है कि आप रीडिंग करो, पोएट रीडिंग करो, ट्रैवल करो, किसी के साथ बात करो कि जो भी आपके लाइफ में कम है. अभी अगर मैंने उनका बुक पढ़ा तो मुझे अलग लाइफ मालूम पड़ेगा कि लाइफ ऑफ एक्शन ऐसा है. जब इनका पोएट पढ़ते वो अलग है. तो जब आपको ऐसे थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ आ जाएंगे तो वो आपके मन में मिक्सअप हो जाता है. और जो मिक्सअप हो जाता है ना, तब क्या निकलता है वो आपको भी नहीं मालूम. दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली. द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़. और आपके मन में जो आ जाएगा वो इनके मन में जन्म भर में नहीं आएगा. इसलिए एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी घबराता नहीं है कि मेरे जैसा काम ये करेगा. मेरे जैसा काम मैं भी नहीं कर सकता, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखो कि सेकंड कुछ भी 100% आता नहीं है. ये अगर काम है ना तो इसका डुप्लीकेशन थोड़ा फार मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एब्स्ट्रैक्ट का काम मैं नहीं कर सकता. क्योंकि एवरी टाइम देयर इज ए माइंड सेटिंग चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, कल्चर चेंज है, मैंने खाना खाया वो चेंज है, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया वो चेंज है, घर में मेरे से बातें हो गई बच्चों के साथ वो चेंज है. अगर आप सेंसिटिव हो तो ही ये कर सकते हैं. अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो आर्टिस्ट मत बनो.
मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए भी मत बनो, क्योंकि वो भी लोगों को समझ में आता है कि ये कुछ भी तो अलग हो रहा है। और आप अगर आपके साथ प्रामाणिक नहीं हो तो आप कैसे दूसरों को बोलेंगे कि मेरा काम अच्छा है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? एंड सेकंड थिंग इज द प्रोसेस ऑफ द थिंग। वो जब आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोसेस में एंजॉय करो, आज मैंने 2 मिनट काम किया, इधर 5 मिनट काम किया, मैं अभी आपके साथ देख रहा हूँ तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन के साथ मैं देख रहा हूँ आप, मैं इधर भी नहीं देख रहा हूँ, इधर भी नहीं देख रहा हूँ। तो ये 100% आपको देना पड़ेगा। और जो भी एंड प्रोडक्ट है उसके बारे में सोचो मत। तो मैं फिर से अभी सेकंड टाइप बात करूँ, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एंड प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अगर इसमें प्रेशर में आ गए ना तो वो पहले जैसा काम हो जाता है कि जहाँ आप सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, तो नया कुछ हाथ में नहीं आता। और अगर आपको नया कुछ हाथ में नहीं चाहिए तो फिर जो भी है आपका रियलिस्टिक काम करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ डिस्टर्ब होना जो है ना चीज़, वो आपको अब्स्ट्रैक्शन में ज़्यादा है। और आपको अगर प्लेन लाइन में जाना है, ये रोड पे जाना है, कुछ भी इधर इधर सिग्नल नहीं चाहिए, तो जो भी है अपना लैंडस्केप है, जो भी है वो भी, दैट इज़ ऑल्सो द एंजॉइंग थिंग्स, दैट इज़ नॉट आर्ट, दैट इज़ ऑल्सो द आर्ट। ऐसा कुछ नहीं कि वो अलग है और ये अलग है। कोई भी एक आर्ट अच्छी है, लेकिन उसके बारे में सोचना अपना कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, मोर देन आर्ट। कि आप सोचते क्या है उसके बारे में, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप थर्ड आई से आपको देखते हैं कि नहीं। और वो दैट इज़ नॉट ओनली द आर्ट, आपको लाइफस्टाइल में भी वो आ जाता है। आप कैसे रहते हैं, आप कैसे सोचते हैं, उसके बारे में भी है। तो आर्ट इज़ नॉट फॉर द आर्ट, आर्ट इज़ फॉर लाइफ। तो ये भी ध्यान में रखो कि आप जो भी बता रहे लोगों को, जो भी काम से बता रहे, जो उसके बारे में थोड़ा बात कर रहे, तो वो भी इसमें सेंस है कि नहीं आपके पास कुछ, आप कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं, क्या वही कर रहे हैं? अगर वही कर रहे हैं तो एक आदमी आपके पास हर रोज़ नहीं आएगा। अगर आप नया कुछ कर रहे हैं तो एक ही आदमी हर रोज़ आएगा आपके पास कि आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। होटल का मेनू कार्ड देखो कि एक ही बात सब देखते हैं, तो कल खाना तो आज नहीं बुलाएगा वो, यही खाना का। अगर कुछ शेफ को पूछेगा क्या कुछ नया बनाए क्या आज, कुछ मेरे लिए क्या, आपके लिए कुछ एक दे दो। तो ये पॉइंट अपने लाइफ में भी आना चाहिए कि आप जब किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ एंजॉय करते हो, तो वो भी उसको भी नया लगना चाहिए, आपको भी नया लगना चाहिए। तो आप एंजॉयमेंट लाइफ ऑफ ये करते कि इसमें डीपली अंदर जाते फिर कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी 40 बरस मैंने पेंटिंग किया और सब वेस्ट ऑफ टाइम गया। कि जो भी मैंने किया है ना उसके बारे में मैं सोच के किया है, तो इसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि 40 बरस गया और अभी क्या टाइम पास करूँ, अभी और क्या पेंटिंग करना बाकी है। तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि अभी मैं कैसे पेंटिंग करूँ, अभी घर में जाने के बाद आपकी बातें सुनने के बाद कैसे चेंजिंग करूँ, आपके रिफ्लेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो कैसे मैं निकालूँ, और वो भी एब्स्ट्रैक्शन में। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो खाली मेरे लिए है। आप जो देख रहे हैं वो आप अलग देखेंगे। और क्या किसी को बोलना है, बोलिए। मैं एक ऐड कर सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट कीजिए इफ़ आई एम नॉट राइट। मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट एनीवे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, आर्टिस्ट, सिंसियर आर्टिस्ट जो थे हिस्ट्री में आज तक, एवरी टाइम आर्टिस्ट ट्राइड टू डिपिक्ट ट्रूथ ऑन कैनवस, आइदर खुद की ट्रूथ जो सब्जेक्टिव ट्रूथ होता है जो मेरे लिए सच है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ, दोनों में एक तो वो डिपिक्ट करने का कोशिश करता है। नाउ ये इस प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन मेरे हिसाब से इट्स द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ। नाउ वो शायद थोड़ा ऐसा है क्या, जैसे सपोज आई एम लुकिंग एट कोई इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसे कुर्ता पजामा पहन के, बड़ा सा दाढ़ी बना के, एक बैग थैली लेके, जैसे इंटेलेक्चुअल होते हैं वैसे सामने आया। ओके, नाउ उसमें से वही लगता है, लेकिन सपोज वो आदमी को कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ही सिली है, शैलो है, असल में ऐसे है, तो वो कपड़े निकाल दिया जाए
तो इम्प्रेशन, गलत इम्प्रेशन नहीं आएगा। और सपोज वो आदमी हंस रहा है और बहुत दुखी है अंदर, तो हंसी वाला चेहरा दिखाया जाए तो वो गलत इम्प्रेशन है, हंसी भी निकाल दिया जाए। ऐसा करके एक एक करके फीचर्स निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो जैसा दिखता है वैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद उसीलिए मोंड्रियन की एक पेंटिंग है पहली, अर्लियर एट अ वेरी अर्ली डेज, यहाँ पे एक जंगल फॉरेस्ट पेंट की, उसमें सिर्फ क्रॉस है, बहुत सारा क्रॉस और कुछ नहीं, जस्ट क्रॉस साइंस, प्लस साइंस, नथिंग एल्स। क्योंकि सब फ्रील्स एक्सेस निकालने के बाद जो बचते हैं, इन द सेंस लाइक माई डॉटर जब छोटे थे तभी वो मैसेज लिखते थे आई एम सो हैप्पी, इसके बाद 50 हो। हाँ, धीरे धीरे अब नहीं लिखती है आई एम हैप्पी, फिनिश। वो जो हमारे लिटरेचर में एडिटिंग बहुत बड़ी चीज़ है कि एडजेक्टिव कम यूज़ करो, तो उसकी एक्सट्रीम ऑर्डर आर्ट में शायद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन है जहाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, वी आर सो फैमिलियर विथ बाहर की चेहरा, द फॉल्सहुड, ट्रुथ जब सामने आता है वी कांट रिकॉग्नाइज इट, इट्स टोटली अनरिकॉग्नाइजेबल। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट शुरू किए थे आइदर फिगरेटिव और लैंडस्केप पेंटिंग से, और वहाँ से धीरे धीरे मैं मतलब ट्रांसफॉर्म होते होते एक जगह पे चले गए कि वो और वैसा दिखता नहीं है। Am I correct? इवन दो इफ यू आर नॉट वेल ड्राइंग, आपके पास नहीं है, अच्छे पेंटर नहीं है, फर्स्ट पेंटर आर्टिस्ट नहीं है ना, तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए मत जाओ। विद इन आफ्टर 10 to 15 years or 20 years you have to do the landscape and all other things and all the way. That is the rhythm of your hand. आपको जो लाइन निकलती है ना उसमें रिदम चाहिए, देखो ध्यान में रखो, रिदम चाहिए, कंपोजिशन चाहिए, गोल्डन पॉइंट चाहिए, सब चाहिए। वो एक बार आपके मन में बैठ गए तो फिर उसको डिकन्स्ट्रक्ट कैसा करना वो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आजकल के लोगों को प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट करने जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चों का एब्स्ट्रैक्ट और मेरा एब्स्ट्रैक्ट एक ही है। उसमें डेफिनेशन ऐसा है कि बच्चे विदाउट कोई भी थॉट इसमें नहीं है, कंपोजिशन भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कलर सेंस नहीं है, ऐसे काम करते हैं। और जो भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है वो सब मिला के काम करता है, दैट इज़ द मेन थिंग। इसीलिए आप अगर उनको लगेगा कि 4-5 ऐसा लाइन लगाए तो एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट। वो आपका देखने का तरीका अलग है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा उसने क्या किया है, वही प्रॉब्लम है। इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये तो बच्चे जैसा है। तो कोई भी मेरा रिक्वेस्ट है आपके बारे में, आप अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटर बनना चाहते हो तो कम से कम 15-20 बरस है ना रियलिस्टिक काम करके रखो, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे मतलब तो उसका इसेंस आपको मालूम हो जाएगा। इसेंस है वो, इसेंस है। यानी आप ऐसा अगर अभी कश्मीर में गए, उधर गए तो चाय बनाने का एक तरीका रहता है। तो कोई भी नया चाय हमने घर में बनाया तो वो वैसा बनता नहीं है, ये ध्यान में रखो। उसका एक स्टेप बाय स्टेप है। तो वो स्टेप्स अगर आपने नहीं देखे और डायरेक्ट अंदर गए कि कुछ कलर है ये फेंक दो अंदर, कुछ भी करो, तो दैट इज़ अ वेरी एक्सीडेंटल वर्क, उसका एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल जाता। See, on his Jackson, you will know Jackson Pollock and all. So, I mean, was he figurative? Absolutely. Yes, even Jackson Pollock was a landscape. Jackson He was a Pollock landscape was a landscape artist, and let me tell you, near the end of his career, उनकी abstract में काफ़ी forms दिखते हैं, eyes, birds, leaves, सब दिखेगा आपको। Remind me, I'll send you just a painting of probably last painting or something like this. उसमें सब वापस आया है ऐसे। this is not so simple. This is a very critical job. और इसीलिए मैंने बोला कि हम जब भी अभी करते हैं तो बरस में एक ही बार एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक ही पेंटिंग हो जाता है। जो भी बाकी है ना वो सब ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको हम पेंटिंग नहीं बोलते। दैट इज़ अ ड्राइंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत फ़र्क है, ध्यान में रखो। ड्राइंग आप जो बनाते हैं ना तब वो ड्राइंग ही रहता है, वो कोई भी उसको स्किलफुली काम कर सकता है, लेकिन पेंटिंग एक ही बार बनता है, ये भी ध्यान में रखो। तो पहले उसके बारे में सोचो कि व्हाट इज़ द ड्राइंग एंड व्हाट इज़ द पेंटिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। हर एक बारे में सोचना चाहिए।
और ये जो इसेंस आपको आ जाएगा ना, कलर का इसेंस है, लाइन ऑफ एक्सेंस है, आपका रिदम है, कंपोजिशन है, गोल्डन पॉइंट, इसका इसेंस जब आप, जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि आप ड्राइविंग कर सीखते ट्रायंगल लगा के, प्लस लगा के, जो भी ट्रेनिंग स्कूल में, तब आप जब भी पहले 2 दिन रहते हैं तो आप कंफ्यूज रहते पूरे कि क्लच किधर है, एक्सीलेटर किधर है, व्हील कैसे करूँ, आगे कैसे देखूँ, ये बीच में आ गया, वो आ गया। एक वीक के बाद आपको थोड़ा सा मालूम होता है कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, और आगे कौन आता है तो उसको ज़रा हॉर्न लग जाता है। उसके बाद 1 महीने में आप क्या करते हैं, स्मूथली चलाते हैं थोड़ा सा, फिर भी वो ड्राइवर के सीट में वो स्किलफुली आदमी बैठता है ब्रेक लेके। जब 6 महीने हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो रास्ते में जो आदमी है वो भी देख के आपसे आप चलाते हैं। तो ये स्किल आना चाहिए, एक्चुअली ड्राइंग का स्किल इसमें है, मसल मेमोरी, डेवलपिंग द मसल। हाँ, तो बाद में आप अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटर है तो फिर आप देख सकते हैं स्काई में भी, अरे ये कुछ अलग है, ये इधर है, फिर भी गाड़ी चला रहे हैं। आपको सिखाना नहीं पड़ता गाड़ी पे, वो आपके इनबिल्ट हो गया कि आपके मूवमेंट ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोई आप बीच में आ गए तो थोड़ा ब्रेक लगाएंगे, ज़रा ठहरेंगे, फिर से जाएंगे। तो ये होना चाहिए ड्राइंग में। तो ये ड्राइंग है। उसके बाद पेंटिंग चालू हो जाता है। जब आप नेचर देखेंगे, ड्राइविंग करते करते माउंटेन देखेंगे, आदमी के साथ बात करेंगे, दूसरे के साथ बात करेंगे, तो फिर भी मैप भी देखेंगे। ये जो एकाग्रता बोलते हैं ना, वन टाइम में जो हिंदी में बोलता है, और समग्रता में बाजू का सराउंडिंग भी देखना चाहिए एक ही साथ, और जो भी नेमली आपको पॉइंट है वो भी देखना चाहिए, और वो एक ही साथ होना चाहिए। ट्रक में वो सब होता है एट ए टाइम, और वो इसीलिए एक्सीडेंटल हो जाता है कि आपको मालूम है आपने क्या किया। इसीलिए खुद के साथ बात करनी चाहिए कि वो आई एम, वाई आई एम डूइंग द वर्क, वाई आर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। ये अगर उसके साथ भी आपको अलग अलग देखना है कि समझो स्कल्पचर है, म्यूरल है, उसमें भी वो भी ड्राइंग ही है, वो भी पेंटिंग है, वो भी इनकम का अच्छा ये है, उसमें इनकम ज़्यादा है पेंटिंग के ज़्यादा। अगर एक पेंटिंग आप 10,000 बेचेंगे तो एक स्कल्पचर आप 5 लाख में बेचेंगे, ध्यान में रखेंगे। मैं इधर बैठा हूँ स्कल्पचर तो इस्टेब्लिशमेंट होने के लिए आर्टिस्ट को जो करना है ना, वो पहला करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन कभी है कि माइंडसेट आपका अभी एकदम क्लाम हो गया, खुद के लिए काम करना है तो एब्स्ट्रैक्शन को जाए। जैसे ये एब्स्ट्रैक्शन ये बिजनेस के लिए बहुत कम है, क्योंकि लोगों को एक तो समझ में नहीं आता, और फॉरेन जैसा अपने पास में कोई एजुकेशन लाइन नहीं है कि बचपन में से ड्राइंग सीखो, ये सीखो, म्यूज़ियम देखो, तो उसके बारे में सोचो, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री देखो, ये अपने पास नहीं है। अपने पास ये है कि जो मार्क आ जाएगा वो ही करो। ड्राइंग भी करते हैं तो कुछ अच्छा ड्राइंग हैंड राइटिंग होने के लिए ड्राइंग एग्ज़ाम देते लोग कि 1-2 मार्क बढ़ जाए, बस बाकी कुछ नहीं है। तो ये ध्यान में अपने आना चाहिए कि ये इनकम सोर्स नहीं है, ये सेटिस्फैक्ट्री ये चीज़ है। और पॉटरी वगैरह सीखेंगे, और ये सब सीखना चाहिए एक्चुअली, मतलब सब हाँ, नहीं सबको, मतलब ये सब में हाथ डाल के एक उसका फीलिंग लेना चाहिए कि क्ले मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो क्ले में आप जब हाथ डालते हैं तो वो मिट्टी आपसे बात करती है, इतना मतलब हार्ड किया तो वो कैसे होती है, रिजिड जैसी होती है वो, मतलब पर्सनैलिटीज़ है अपनी। लोगों देखते हैं हम लोगों को कि कोई लोग रिजिड रहते हैं, कोई एकदम सॉफ्ट रहते हैं, वैसा वो फील करना चाहिए सबको। कलर्स का भी वैसा ही है, उसको फील करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ रिलेशन मतलब अपना टॉक होना चाहिए। तो वो पेंटिंग ही कभी कभी अपने को बोलता है कि ये रंग मुझे इधर नहीं डालो, कि दूसरा डाल दो। और जब वो आप इतना जेल हो जाते हैं ना, तभी ये सब हो जाता है। ये एक्सपीरियंस है मतलब, और वो एक्सपीरियंस ध्यान में लेके काम करोगे ना तो कुछ भी नहीं आएगा। एक हिसाब ऐसा है, एक्सपीरियंस छोड़ो तो नया काम करो। नया काम अगर बनाना है, और एक आपने एक्सपीरियंस अच्छा लिया और बाद में वो दूसरा पेंटिंग करने के बाद आप सोचेंगे कि अरे वो वाला एक्सपीरियंस मुझे आना चाहिए ना, तो वो जन्म में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पेंटिंग भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए पॉटरी सीखो, पोएम पढ़ो, ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। डांस देखो, मतलब सब कल्चरल जो एक्टिविटीज़ रहती है ना, वो सब देखो,
कुछ काम नहीं किया ना तो भी चलेगा, लेकिन ये सब जो देखना है ना वो अंदर से देखो, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आप नेचर में देखो, अभी लाइट शेडोज़ वगैरह इतने अच्छे आते हैं, सीज़न चेंज हो जाता है, फॉल सीज़न आता है अपने यहाँ भी, तो वो सब ना मतलब माइंडफुली देखो आप, तो उसका सब इम्पैक्ट अपने काम पे ऑटोमेटिक होता है और आप फ्रेश भी हो जाते हो। मतलब आप जब ऐसा किसी अच्छे मूड में हम देखते हैं ना कि नेचर को, तो अपने दिन भर का मूड चेंज हो जाता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब खाली अच्छा ड्राइंग किया और मैं पेंटर बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी डांस का प्रोग्राम भी रिदमिक रहता है, उसमें म्यूजिक भी रहता है। वो अपना जो ड्राइंग लाइन ऑफ एक्शन है ड्राइंग का वो सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है। इसीलिए अभी पोट्री देखो कि मैम ने जैसा वो म्यूजिक सुनो, म्यूजिक के साथ आप काम करोगे तो अलग मूड रहेगा, म्यूजिक के बिना काम करेंगे तो अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो है ना, ये टेस्टिंग करो खुद को कि कैसे हम कंफर्टेबल है, कैसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस में काम कैसा हो रहा है, वो राइट डाउन करो। जो भी पेंटिंग बनाए उसके बारे में 4-5 सेंटेंस लिखना सीखो। समझो एक पोएम रहे वो भी चलेगा, कोई पोएम के साथ वो आपको ध्यान में आ गए वो भी चलेगा, लेकिन आप जो बात करते हैं ना, वो भी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिस्ट ने। मेरा लैंग्वेज पेंटर है इसलिए मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो आप जो अप्रिसिएशन है वो अप्रिसिएशन आप लोगों के साथ नहीं कर सकते, फिर एग्जिबिट करो। एग्जिबिट करने के बाद आप उधर खड़े रहो और बातों करो कि आपको क्या लगता है मेरे पेंटिंग में क्या दिखता। जब वो देखेगा कि आपके पेंटिंग में कुछ अलग दिखता है तो दैट इज़ द सरप्राइज यू, कि मैंने तो एब्स्ट्रैक्ट बनाया था और इसको क्या दिख रहा है। तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपको जो मन में आता है ना, उसके बारे में आपका अगला स्टेशन वो रहेगा कि अरे मुझे अभी इसने ये देखा, गणपति का देखा, कोई बर्ड देखा, तो अभी इसके नेक्स्ट टाइम में बर्ड नहीं आना चाहिए। तो इसका ही विजन आपको ऐसा यूज़ होता है कि कुछ क्या आना नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद को, आपका मूड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल करना है ना और कंट्रोल नहीं करना, ये कभी करना काम के लिए कैसे करना, वो भी सोचना चाहिए। और ये आपका पूरा लाइफ सेंटेंस के ऊपर है, आपके लाइफ के जो भी आप बात कर रहे हैं, जी रहे हैं ना, उसके ऊपर भी असर करता है। ये भी ध्यान में रखो कि पेंटिंग एक पेंटिंग के लिए नहीं है। वो आदमी दिखता है क्या ऐसे कि वो जैसा बात करते हैं, वो फ्लोली कैसा बात करते हैं, एक्सप्रेशन कैसा। आप अभी बैठे तो पीछे का लाइट गया तो मेरे ध्यान में आ गया कि कैसे लाइटिंग भी चेंज हो गया है, एक्सप्रेशन मुझे अभी दिखे नहीं दे। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप काम करते हैं तो कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। रियलिस्टिक में ठीक है कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा वो क्या करेंगे। ये मूड अगर ये अभी समझो इवनिंग का मूड है, वो एक्सप्रेशन में कैसे आएंगे आप। तो वो चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए। और आपको जो एक्सप्रेशन लगेगा इवनिंग का, वो इनको लगेगा ये 100% भूल जाओ, वो आपको ही मालूम है। इनको वो मॉर्निंग भी लगेगा मालूम नहीं कुछ। सनसेट और सनराइज में बहुत लोग प्रॉब्लम करते हैं एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक में भी होता है। हाँ, और ये लाइफ में भी हो जाता है कि ये यार बंदा काम कर रहा है कि नहीं, हो गया बंदा काम कर रहा था कि वो सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। ये एक्सप्रेशन जो अभी सर ने बताया ना, वो एक्सप्रेशन बहुत ये करते काम में। अगर हम ह्यूमन है तो ह्यूमन बीइंग के साथ रहना चाहिए, कि एक्सप्रेशन के साथ रहना चाहिए कि अगर आपके कुछ हो गया तो मैं पूछना चाहिए, अरे ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है। लेकिन वो कोई नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं इधर जाता हूँ वो उधर जाता हूँ, तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। फिर सेंसिटिवनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास में। आप खाली नेचर के साथ करेंगे, ये ड्राइंग बेचा का नहीं बेचा, 10,000 मिले कि नहीं, उसके बारे में सोचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा तो मिलता है ऑटोमेटिकली, काम करो नहीं तो मत करो, ये ध्यान में रखो। लेकिन जब आपका एंजॉयमेंट है, आपका प्रोसेस का जो जर्नी है, वो आपको खुद को ही मिलना है। और उसके बारे में आप कहाँ भी चैलेंज नहीं कर सके, वो भी आपको नहीं चैलेंज करेगा कि आप कितना एंजॉयमेंट कर रहे हो। वो आपके चेहरे के ऊपर ही दिखता है
कि मैं कितना एंजॉयमेंट किया, आज कितना खुश हूँ काम करके। तो ये ध्यान में रखो, ये कौन से भी आर्ट में है, ऐसा नहीं कि पोएम में है, रीडिंग में है, राइटिंग में है, डांस में है, म्यूजिक में है, सब में एक ही बेसिक है। और खाली वो बेसिक कैसे कैसे बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, संगीत में कैसा आ रहा है, डांस में कैसा आ रहा है, पोट्री में कैसे, ये सीखना चाहिए। तो आपके एक ड्राइंग में ना वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। हमने इसलिए 30-35 बरस वो स्कल्पचर किया, वो पोट्री किया, म्यूरल किया, उसके बाद मैंने अभी पेंटिंग के बारे में सोचा। और ये मैडम ये पहले से पेंटिंग कर रही थी, बाद में स्कल्पचर आ गया, बाद में ये आ गया, एडिशन आ गया। नहीं, विसा वर्षा है, सब अलग अलग है। उनके काम मेरे जैसे नहीं होते, मैं भी उनके सब जैसा काम नहीं कर सकता। और अगर मुझे उनके जैसा काम करना है तो वो जिंदा है ना, वो काम करेगी ना, वो मैं क्यों करूँ उनका काम। That's exactly so. बोलिए और कुछ। मैं इनको आज दोपहर को बात हो रहा था, वही आप भी पूछो, कुछ पूछना है। मैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ नहीं। सो आई थिंक प्रॉब्ली आई एम द ओनली वन हु इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हियर। बट आपने जितना कुछ बोला, जो बेसिक जो कुछ आप बोल रहे हो, दैट इज़ ट्रू फॉर एनी आर्ट, दैट इज़ ट्रू फॉर एनी आर्ट। जो ऑनेस्टी है, जो सेंसिटिविटी है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो ट्रू टू योर बीइंग ट्रू टू योर जर्नी है, दैट इज़ ट्रू फॉर एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। तो ऑल्दो आई एम नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, एग्जैक्टली लाइफ के लिए भी है वो। Exactly. कितने खुश हो जाते हैं ना। एग्जैक्टली तो जो आप बोल रहे हो, ऑल्दो abstract is not my this, but I love abstract art and I enjoy. और आप जैसे बोल रहे हो, जैसे you have to really explore different forms of arts, म्यूज़िक हो या डांस हो, या अभी मैंने हाल ही में मोज़ेक सीखा। इट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब करते करते जैसे वो पीसेस फिट होते हैं उसमें, या वो बन जाता है वो, तो वो कुछ अलग ही उसका ये था। जो बन जाता है बोले ना, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। या मतलब ऐसे कुछ नहीं है, बन जाता है, बन ही जाता है वो, बिकॉज वो ऐसे हम सोचते नहीं कि वो हर पीस फिट होगा, बट इवेंचुअली इट फिट्स एंड द एंड रिजल्ट इज ब्यूटिफुल। यस, इट कम्स टुगेदर. So although abstraction is not my this, but I still feel that whatever you said is true to almost all that is art forms. only the way of the working. Yeah. Way of looking. But abstraction is also art, but realistic is also art. Yeah. Still life is also art. What is it? Only the आपको जैसे एक्सप्रेशन में जाना है, Yeah. तो एक्सप्रेशन में लैंडस्केप में नहीं जा सकते, ज़रा प्रॉब्लम होता है। Correct. तो लोगों को लगता है ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लेकिन एक्सप्रेस में अट्रैक्ट में आप यू कैन डू एवरीथिंग, यानी वहाँ बाउंड्रीज नहीं है। Very true. हाँ, मैंने आप जो बोल रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग इज, आप ये बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर डूइंग वी आर डूइंग लैंडस्केप पेंटिंग फॉर दिस प्लेस, पूरा के पूरा मेरा खुद का एक्सप्रेशन जो जा रहा है ऐसा नहीं है, वी हैव टू कैप्चर व्हाट इज विजिबल। But when you are doing abstract expression, you are completely free to just express yourself. Total freedom है। It evokes in you हाँ, who is painting. हाँ, लैंडस्केप में थोड़ा सा लिमिटेशन है, reference you है, थोड़ा have to ये stay है। within a boundary. It's a नहीं, यू कैन डिलीट द थिंग्स। अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो वो मैं डिलीट करूँगा, ये गाइड करूँगा, वो करूँगा, दैट्स ऑल राइट। बट बेसिक थिंग इज देयर। और इवन दो जैसे कॉपी जो भी होता है ना, तभी भी हर एक माइंड में अलग अलग कॉपी रहता है। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो हर एक का ड्राइंग अलग रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमन। This YouTube guy who is quite famous on YouTube, he said this. Okay. He was talking about, this video was about developing your own style, you know, which people like who are emerging right now, so they focus on it a lot, that how do I develop my style, so he said, I did an experiment, that he's a realistic painter. He said they were painting he was painting with his students. Okay. In the field, in the lands with plein air. So he said there were 12 of them. I told them paint this thing, and it was not as if they had to it was a constructed. Okay. I mean, it was not that okay जो तुम्हारा दिल करता, नहीं, just one area.
even then all 12 of them had different Yeah. though they were painting the same bada tree, same No, chota no, tree, exactly. same mountains. Even then, he says, I mean, his conclusion of that thing was, don't worry about developing your style. You already have it in you. वो तुम्हारा है already, बस निकालना है. Only you have to change it purposely. That is, we did exactly this right here. I think she was also part of it. Yeah. We did this performance art here. और ironically उस दिन इन लोगों का एक दिन रहता है जब लाइट नहीं जलाते, सिर्फ मोमबत्ती का जलते हैं इधर. तो वही कोइंसिडेंस हो गया और वो आने के पहले पता चला. मुझे ठीक है चलो उसी में करेंगे बोल दिया. तो क्या हुआ, we had some 6 artists here और 6 जन मिलके वैन गॉग की जो सनफ्लावर है वो सामने रख दी और बोला सभी कॉपी करेंगे इसको, ठीक है. और मैंने और एक काम किया, साथ में एक सनफ्लावर फ्लावर भी रख दी, ठीक है. नाउ माय सन आल्सो वाज वन ऑफ देम. तो Nilanjana come sit. So Nilanjana was also there. Okay. They all painted sunflower. Nitesh was there. actually told us this. All of them did sunflower, copied sunflower of Van Gogh. Each of it is different. We made a video of it. Yeah. और फिर बीच में वो sunflower था. अभी ढूंढो कौन सी original. Because Impossible. artist cannot help but leave his signature. Yeah. सिग्नेचर देने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ के ही जाता है, कोई नहीं भाग सकता उससे. तो एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है. एक टीचर ने ऐसे बोला था कि फील्ड में ऐसे काऊ ग्रेजिंग कर रही है, ऐसे निकालो. तो सब ने निकाला ग्रीन कलर गाय वगैरह. तो एक बच्चे ने सब मतलब कुछ नहीं किया, खाली ऐसा कलर ये किया मिट्टी का. तो टीचर बोले ये क्या है, तो बोले गाय ने सब खा लिया है. मतलब सबका इमेजिनेशन इतना अलग अलग होता है ना. और छोटे बच्चों का तो पूछो ही मत. आप तो टीचर है, आपको ज़्यादा पता होगा. बट ये जो अलग होता है ना, इसके पीछे का कारण बड़ी क्यूरियस कारण है. मैं शॉर्ट में बताता हूँ. यू नो हाउ मच डेटा इन टर्म्स ऑफ विजुअल साउंड ऑल दिस, ये जो टच एक्सेट्रा, ये हमें जो हिट करता है हमारे सेंसरी ऑर्गन को, इज इनॉर्मस अमाउंट. एंड हाउ मच गोज ब्रेन कैन एसिमिलेट इज 140 kb per second. ओके नाउ, और उसमें से एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर बात करोगे तो यू आर शूटिंग 40 kb per second एट मी. इफ सी इज टॉकिंग 40 kb per second, 3 जन बात करोगे, 4 जन करोगे तो मेरे को पता नहीं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है. नाउ ड्यू टू दैट, इसी कारण से एक ही सेटअप में एक साथ अगर 2 जन 30 साल भी एक साथ रहा, 30 साल के बाद 2 जन की मेमोरी अलग है. एक ही लाइफ की मेमोरी अलग है, क्योंकि कौन क्या है, कौन डीप इम्पैक्ट करेगा, कौन क्या करेगा, किसको कौन सा 40 kb में से लिया. You know, I will tell you this. I observed and experienced and noted in my mind this when I met my school friends for a reunion. We had our 25 years school reunion, and we were in the same school, same class. We are having a reunion, we know each other, but the memories which came from that time were all different. And one person said something which I don't, even though the person is telling me that incident, I have no clue that happened. And by the physical chronological thing, I was very much there, but that is not my memory. That's very true, and this has fascinated me about my school friends, because I am quite in touch with them and I keep meeting them. We all remember different things from that same time frame. कुछ बोले. ये अलग अलग है. ये जो है ना, वो अलग अलग होना ही अपने लिए प्रॉफिटेबल है. अगर एक जैसा अगर फैमिली ये रहेगा तो फिर बोर हो जाएंगे, जीना मुश्किल है. जीना ही मुश्किल है. यानी सबको अगर एक ही आदमी पसंद आ गया, एक ही पेंटिंग पसंद आ गया, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे. बहुत सही बोला आपने. हाँ, तो ये बनाने वाला जो है, जो भी है वोटर भी, उन्होंने इतना अपने आगे है, वो कभी भी अपने आगे है. तो वो जो सोचता है उसके बारे में सोचो मत. अब हमारी जो सोच है ना, उसके वहाँ जाओ, डीप में जाओ कि हम क्या देख रहे हैं, उसका इम्पेक्ट क्या है.
आज मैंने इधर देखा, मैं घर पे जाके अगर समझो कि किसने क्या बोला, इसके ऊपर से मेरे ऊपर क्या डीपली ये किसने किया, कोई वर्ड आ गया क्या, किसने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया गया, तो वो मेरे लिए अच्छा है। सबके सब अब मेरे लिए अच्छा नहीं है अभी। अगर मैंने 2 दिन नहीं 2 बरस भी इधर गया है, तो भी 2 बरस में खाली 1-2 पॉइंट ऐसे रहेंगे कि हाँ ये मलाका स्पाइस ने मैंने ये सीखा था, बस खत्म। तो ये जो अपने माइंड में जाता है ना, हर एक का फिल्ट्रेशन अलग है, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए हर एक ड्राइंग अलग देखता है। अगर मैंने अभी उनको पूछा था कि ये कलकत्ता का है, क्योंकि मैंने उधर जाके ये शांति निकेतन में ऐसे ही सब देखा है। No, this is Kalpita, Karnataka. I visited this नहीं उधर वो forest. वो बाम्बू का ये जो कौन सा एरिया था, नहीं दूसरा अपन दे रहे थे सुंदरबन। लेकिन भाई साहब ऐसा हुआ, ये फोटो जो है मेरे घर के एकदम सामने बहुत साल लगा हुआ था। अरे सी लाइक दिस। Okay. और कुछ दिन पहले एक वास्तु वाले को बुलाया था, हाँ उसने उधर आके बोला ये क्या करके रखे अरे हो, बाप रे। ये झोपड़े में जाओगे क्या? इसलिए इधर लाए। तो इसे झोपड़ा दिखा, वो बोला झोपड़े में रहोगे क्या, तो निकाल दी इसको। again perception. I would. That's how it differs. Love to be. Exactly. For me, it is a Exactly. tree house. वही है वही है। That is what I'm saying. उसको क्या देखेगा कि उसको ऑब्जेक्शन ही देखेगा कि ये क्या कर रही है। वो मैं मुझे इधर बुलाया ना वास्तु वाले को, तो पर मैं पहले ऑब्जेक्शन जोड़ लूँगा, ये कैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हाँ निगेटिव वो पहले देखो। वो आते आपको भी बोलेगा आप इधर मत रहो, आपके लिए ये घर बनाया नहीं है, ऐसा भी बोलेगा कुछ दिन के बाद। तो क्या करेंगे हम? हम जब म्यूरल का काम करते थे ना, तो वास्तु के हिसाब से भी हम करते थे। तो एक भी बोला था वास्तु वाले ने कि इधर सब मतलब मिरर रहते हैं ना, तो वो ब्रोकन मिरर का कुछ आप लगाओ, नहीं लगाओ ऐसे बोला था उसने। हाँ तो वो जो आर्किटेक्ट था ना, तो वो बोला कि आप उसमें से कुछ म्यूरल बनाओ, तो फिर वो अच्छा लगेगा। फिर ह्यूमन फिगर हमने बनाया, वो हमने ह्यूमन फिगर में बनाया, हाँ मिरर के स्लैब में बनाया। वो लंबे से ह्यूमन फिगर दिखेगा, नीचे क्या तुम मिरर दिखेगा। रिफ्लेक्शन ऐसे भी बहुत काम किया है हमने कि गोल्ड और ये यूज़ करके फिर एब्स्ट्रैक्ट म्यूरल में वो उसका कंपोजिशन किया था कि ऐसे जब वॉल पे लगाया तो वो पेंटिंग और ऐसे जैसे वास्तु के हिसाब से अच्छा तो होना पड़ेगा। मैंने उसको आर्टिस्ट के साथ में किया ऐसा लगना चाहिए, और जो ओनर है उसको लगना चाहिए कि इसने पता है ना वास्तु वाले ने उसका काम। वो सब आ गया है, वो एलिमेंट आ गए हैं। कभी कभी बोलते हैं ना कि सन का लगाओ ये करो, तो वो वैसा भी काम किया है मतलब। Okay, I think we're coming to an end. किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। You want to ask something, please? आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे शुरू करते हैं, तो आई वॉज क्यूरियस कि आप और मैम हाउ डू यू स्टार्ट, आप कैसे शुरू करते हैं, आपकी कोई पैटर्न्स प्रोसेस है, और डू यू पैटर्न को हम तोड़ते हैं। हाँ डिलिबरेटली आप ऐसे करते कि पैटर्न बन रहा है तो वो तोड़ देना चाहिए? नहीं जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं करते, इसके लिए हम ज़्यादा फ्री है कि काम करना नहीं है, सोचना है, अलग अलग बातें करना है, रीडिंग करना है, ट्रैवल करना है, तो उसके 2-4-3 महीने के बाद फिर प्रोसेस चालू हो जाती है कि जो भी देखा है उसको बाहर कैसे निकालें, और वो भी निकलता नहीं है। वो प्रोसेस चालू होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ आता नहीं है, जो भी मेरे माइंड में है वो आता नहीं है, इसीलिए 100 ऑफ ड्राइंग हो जाते हैं। और फिर बाद में एक आधा दिन ऐसा आता है कि एक ही ड्राइंग में सब ड्राइंग आ जाते हैं, तो दैट इज़ द फाइनल ड्राइंग पे। अभी मैंने एक चंद्रपुर गया था, तो कोल माइंस के ऊपर उधर देखा था कि कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उसके आने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब था कि अभी ये कैसे मेरे मन से मैं कैसे निकालूँ, तो इसके लिए मुझे 3.5 मंथ्स लगे। और अभी ऐसा हो गया कि अभी मैंने फिर डेट फाइनल किया कि ये 20 जून तक मुझे एग्जीबिशन करना ही है, क्योंकि एक डेट हो गया ना तो फिर आदमी कोई भी काम करता है फिर। तो उसके बारे में मैंने सोचा, तो बस 10 जून को मुझे ऐसा लगे कि अभी काम शुरू करो, तो फिर भी बहुत जल्दी उठता था 4-4:30 बजे सुबह, और 6-7 बजे तक मेरा काम हो जाता था। लेकिन वो भी खाली ड्राइंग नहीं, खाली पेंसिल से रेंडरिंग वगैरह ऐसा। तो
तो मुझे तब तक मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। तो बाद में ही मुझे आत्मा लगी कि कोल ऐश की जो भी थैली रहती है वो कैसे ये करूँ, उसमें कंपोजिशन कैसे करूँ। फिर इंस्टॉलेशन याद आ गया, इंस्टॉलेशन का ड्राइंग मन में आ गया। तो फिर वो न्यूज़पेपर यूज़ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो हो गया। लेकिन वो मेन जो आइटम था कि कोल ऐश और सन बर्निंग, जो भी उधर चंद्रपुर में 45-48 टेम्परेचर रहता है, तो वो प्रॉब्लम कैसे दिखाने का। और पोल्यूशन, क्योंकि उधर जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्रोग्राम है उसमें पोल्यूशन बहुत है, वो कैसे दिखा देगा। तो एक दिन सुबह ऐसे ही चल रहा था मैं, तो रास्ते के ऊपर जो ये जो रोड बनाते ना, स्टार रोड, वो उसके लिए जो जलाते उसका एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था जला हुआ। और देखने के बाद ही मेरे ध्यान में आ गया कि ये कुछ अपने को याद आ गया। तो मैंने उठा के उसको घर में लाया और मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट में मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। वो फिर मैंने ग्रे कलर का एक पैच किया, उसके ऊपर वाइट कलर का सन किया और उसके ऊपर ब्लैक कलर का वो कोल ऐश का हैंग किया। तो मुझे कहना था कि सन जो बर्निंग है उसको भी वो कोल ऐश खा रहे हैं, उसके साथ जो ये है हीट है वो सन को भी बर्न कर रही है। ऐसा प्रेजेंटेशन हो गया और वो काम हो गया। तो ये हमारी प्रोसेस है, हम कंटिन्यूस काम नहीं करते और किसी के लिए बेचने के लिए नहीं। जो हमारे पास बेसिकली जो भी किया है वो लोग अप्रिशिएट करते और लेके जाते। दैट इज़ आवर लक। लोगों को काम करना पड़ता है उनके लिए, लेकिन हमारे अभी तक जो भी 40 बरस का है, जो भी हमने काम किया, ड्राइंग किया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। Thank you for sharing. Okay, so I think this was very informative and invigorating. I mean, we learned so much. Now, after this, for a very short time, he is Dr. Amit Biswas. He is a professor of statistics in ISI Chennai. So he is an old-time friend of mine. So I had requested him some time back and suggested him, do you see any connection between art and mathematics? So he had been working on it for a while. So I requested him to talk about it. Thank you very much for it. I would be able to project pictures to you. So I started with this, and as I looked at this, Vitruvius was a Greek philosopher, and he had ideas about the ideal male body. And this painting by Leonardo da Vinci, you can see the man projected in the circle as well as in the square. And it's much later, and you can see the year. Which year was it? 1449. So it is much later that squaring a circle, the concept of squaring a circle came, where the area of the circle has to be represented into a square. As you know, area of a circle is pi r square, and pi is an irrational number, and square rooting pi is not an easy object. But seeing this picture and the way the male body has been drawn, you can see the tip to tip, that length is same as the height of the person. And there is also a concept of torso to the whole body ratio, as well as there are several others. And as we see this picture, what later on people discovered is Leonardo da Vinci might not have actually equated the area of the square to the circle in this particular picture, but he would have had an algorithm which is at an iterative steps eventually equals the area of the circle into a square. So such were the knowledge that these artists had. It's a big process actually. You start with the circle and draw a line on two sides of it, also on two top it, and then crisscross several lines and etc. So that algorithm possibly he had, and that is how he has been able to project this Vitruvius man.
So this was one. I've written something. So mathematics can be discerned in not only visual art but in music, dance, sculpture, in architecture, textiles. Golden ratio. I'm sure several of you know about it. Always influenced the sculptors working with male body. Shoulder to waist ratio, torso to whole height ratio are both close to 1.618, the golden ratio for the ideal male body. Now mine and Shoikat's may slightly differ. We may not be having the ideal body, but we'll be very close to this. And how does this occur? This is also related to what happens in nature. Salvador Dali, the surrealist painter, is known to have used the golden rectangle, meaning the ratio of the two sides being equal to 1.618 in his picture of the Sacrament of the Last Supper. Heard of Fibonacci? Somebody talked about Fibonacci as well, right? So Fibonacci was during 1170 to 1250, 12th century, also known as Hemachandra number. Hemachandra, an Indian scientist who precedes Fibonacci, 11th century. And the origin of what Hemachandra studied was from Acharya Pingala, which is in 400 BC, India. But the same numbers are more popularly known as Fibonacci numbers. This is a series of numbers. Starts with 1 and then n1 again, and then every two consecutive numbers as you get the third. So 1, 1, 2, and then 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, etc. It goes on. So that is how the Fibonacci series is. And so it is expressed as fn plus 1 is equal to fn plus fn minus 1, uske preceding two numbers. That is how it is expressed. And when mathematicians look at relationships like this, they get tempted to study a bit more. So what they look at is, in the limit fn plus 1 by fn, where does it go? Because to begin with it is 1 by 1, and then it is 2 by 1, then it is 3 by 2. It changes. But as you keep seeing this ratio repeatedly as n progresses, does it go and converge somewhere is the question. And it was found later that it does, and that is what is defined as the golden ratio. It comes to 6.61803398887. It's a irrational number again. Goes on and on. So this is the famous Mona Lisa, and here what Leonardo da Vinci would have used is not only a golden rectangle but a golden spiral. Starting from the nose, as you can see, it goes on to another portion of the face, which also is a golden rectangle, and it expands eventually, and that is what is defined as the golden spiral. So these were there in them, and they had used all this. Discovery happened later. So this is the sunflower, and the seeds of the sunflower actually are arranged in that Fibonacci number series, and golden spiral keeps increasing. So it occurs in nature. So I talked about so far the Fibonacci numbers and the golden ratio, golden rectangle, etc. But as you can see in this engineering drawing has plan, which we see in the flats we stay in, and also projection, the elevation of the building that we look at. So both these are taught in engineering drawing, and engineering drawing eventually gives you the idea that something which is at a distance has a lower projection on the picture. So that is what is used to depict depth. You can look at this. This is a picture where
there are people standing at different depths, and the sizes of them actually give rise to this sense of depth in us. And they have used this ratio proportion kind of thing to represent this. Turbulence. Turbulence has been one of the most difficult phenomenon in fluid dynamics to represent mathematically. When water boils, turbulence happens. When a cyclone takes place, in the air you see turbulence. We hear of turbulence in every flight that we travel. So it is mathematically very difficult to explain or represent. However, Vincent van Gogh did just that in his Starry Night. That was painted in 1889, and he was sitting in an asylum, and through his window he was able to see the sky, and that's what he had drawn. Much later, around 1950, almost 60 years later, this was represented by Russian scientist Kolmogorov. And Kolmogorov was basically a probabilist. He used to work with probability, but these scientists always have they entangle many areas. And he discovered that the brush strokes, the colors, and the reflection of light from those actually exactly matches what Kolmogorov represented in his scientific model of the turbulence. In turbulence, there are big swirls as well as there are small swirls that take place. The number of small swirls around the big swirl, all those actually matched exactly with what Van Gogh had painted 60 years back in his Starry Night, sitting in an asylum. So this is the famous picture. I'm sure all of you are aware of it. Van Gogh went on to predict the impact of age on his paintings, particularly about his Sunflower series. And in most cases, he was almost exactly right. So he understood the chemistry of the paint and its deterioration. How, you may ask? I had the opportunity of visiting Van Gogh Gallery at the Kröller-Müller Museum. This is not the Amsterdam one. Amsterdam is a Van Gogh museum, but Kröller-Müller Museum had a Van Gogh gallery. This was in a huge national park, and the national park also had many sculptures. I was actually showing that yesterday. In wide area, big sculptures by other artists. And I was also seeing this long time back when I was hardly about 30 years old. Didn't understand much of them, but possibly today I have a better appreciation of what I had seen then. This particular place was close to a city called Arnhem, about an hour from Amsterdam, in the southwest of the country. A small country, as you know. Now these geniuses had an innate understanding. Their understanding was not mathematical by symbols or formulas. They had an innate understanding of complex phenomena, and they could actually communicate those geniuses in them through their painting. After being commissioned with David, left unfinished by several other sculptors, Michelangelo went on to visualize David being put on a pedestal. As you know, David is a huge, tall structure. It was a monolith marble which several others could not handle, and that Michelangelo was brought in. And he imagined that this tall structure will be viewed by people who are standing on the ground. So his David had that elevation in mind. So if you sit on a drone and possibly see David, it may not look what we actually see of David. So that is how science influenced them. And if you look at Michelangelo or Leonardo da Vinci or several other painters, they are not called painters. They are artists, painters, engineers, architects. They are scientists, philosophers. They were all of them. Some of these artists knew a lot more mathematics than few mathematicians of any age almost. For example, about Ramanujan also, we are told that Ramanujan simply wrote few formulas.
equations, which he did not explain. And how did it occur to him? It occurred to him just like that. The title of the book is Who Knew Infinity? The Man Who Knew Infinity, you know that. And to these scientists, who are called artists, mathematics occurred in the same manner, and they placed it in their language of painting, their language of sculpture, unlike the way Ramanujam did. That's all the difference. That's great. एक ना छोटा सा चीज़ बता के बड़ी अजीब सा मैंने देखा, ये जो गोल्डन रेशियो हम आर्ट में यूज़ करते हैं, इन्होंने मैथ्स की बोला। आई एम नॉट अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और एनीथिंग, बट मुझे बहुत मज़ा आता है वो जो चार्ट की जो है, आई समटाइम्स मेनी टाइम्स आई प्लेड विथ इट, आई मीन पुटिंग इन लिटिल मनी व्हाट हैपन्स, बट नॉट फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब मार्केट फार्केट नहीं। देर आर ओसिलेटर्स, बहुत सारा ग्राफ बनता है उसके पीछे, वो देख के सपोजली अब जब टर्मोइल नहीं है इकोनॉमी में, एक्चुअली यू कैन प्रेडिक्ट कि कितना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जब गड़बड़ नहीं है मार्केट में। आज की सिचुएशन में बिल्कुल ऐसे बहुत गड़बड़ है। तो उसमें ना एक है फिबोनाची रिट्रेंचमेंट करके है, तो मुझे मज़ा आता है। आई जस्ट गो इनटू द मैथमेटिक्स एंड लॉजिक बिहाइंड इट, वो मैं ढूंढते रहता हूँ क्यों ऐसा हुआ। तो उसमें फिबोनाची रिट्रेंचमेंट ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये गोल्डन रेशियो यूज़ करते हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट आप वो खींचोगे तो एक एक जगह पे दाग आ जाएगा और वहाँ पे आके प्राइस रुकेगा ही रुकेगा, उसके बाद नीचे जाएगा ऊपर जाएगा पता नहीं, बट देयर इज़ लाइक ए स्टेप होता ही है। बड़ी अजीब है ये। फिर ना मेरे को डाउट है कि इसका कितना तो नेचर से आ रहा है। देन आई डिड दिस, यू नो, मैंने मेरा लाइफ की जो जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो कौन सी एज पे थे, ये मेरा हुआ, सबका होगा कि पता नहीं, मैं वो एज को डिवाइड की, इट्स गोल्डन रेशियो। बहुत डेंजर है, फिर आगे जाके डरता है, डर लगा कि फिर आने वाला है कुछ तो। ओके, इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।